कि सभी जानते हैं कि कौटिल्य पंडित गूगल बॉय का परिवार बहुत ही शिक्षित और संस्कारी है। इसी परिवार की बेटी दीक्षा ने अपनी प्रतिभा और संस्कारों के चलते सरकार से ली लाखों की स्कॉलरशिप, एयर फोर्सेस इंजीनियर बन किया, यूके में एक मुकाम हासिल और सभी ने बेटी को दिया आशीर्वाद। आज मेरा आशीर्वाद समारोह था a type of farewell for me because I'll be going to UK to pursue my career in aerospace engineering. I'll be starting with my bachelor's degree, and this is a program which is the foundation to become an astronaut or to become a space scientist. So aerospace engineering is a field in which you learn about, you study and you learn how to manufacture, make spacecraft, space shuttles, anything that goes from the earth to the space. So I'll study about for that, and I really think and wish that I'll do my best, and I am very dedicated in this field, and I hope so that yes, I will do it, and this is the field for me. यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो, as we know, this is a bachelor's degree that I'll be pursuing in foreign, and these universities, they just don't look at your academics आपके अच्छे होने चाहिए, but they also look how good are you overall. So I got some exceptional event management skills. I have conducted more than 24 talent shows, functions, and I've been part of them. I have managed them really well. Apart from that, you should be a good public speaker, a communicator, and your resume or CV that is usually developed after you graduate, but you have to make one while you're in school. So what are the different activities that you have been doing so far? So I had several sports on my resume as well, such as gymnastics. I was a gymnast when I was a kid. Then I was a swimmer. I was a national level chess player. So these things add up in your resume. And apart from that, I am a motivational speaker, and I recite famous poets. So that is also my key thing that I do, and I represented in my CV. Apart from the other thing that I mentioned was I did several other courses. One of the course was from MIT, number one university in the world, Massachusetts Institute of Technology. The other course I did from TU Delft University. I also recently did computer science course from Stanford University. So these things show that how dedicated you are to that field. If you want to pursue or start your career in a particular field, it should be a matter of years that you've been preparing to get into that field. So I chose this field when I was in 7th standard. 7th and 8th I have finalized, yes, aerospace it is. So that's why I will be pursuing my field there. इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं इतने अच्छे तरीके से बोल पा रही हूँ. आई गॉट दोज जीन्स, सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर एंड माई एंटायर फैमिली कि एक ऑरा है हमारे अंदर दैट येस वी कैन स्पीक. बहुत से मेरे से भी अच्छे स्पीकर हैं, बट दिस इज़ टचवुड अ वेरी गुड skill that we have in our family. Apart from that, I come from a family of all teachers, all educationists. So it was first hand that helped me, that pushed me forward to pursue anything, whatever I wanted. And one of the most important thing was that my parents never discriminated in me or my brother. So initially they are like, if you are good at studies, we'll support you. We don't look at the gender. So they have always been supporting me. They are supporting me now. They organized this fest today, Felicitation Fest, to get me all the blessings and to tell me that yes, where I belong from. I am an Indian. I am Sanatani. So that's why I need to know my roots. I need to know my roots really well. And it's not just my parents who have struggled to send me to the course that I'll be pursuing, but it's everyone who has come so far, and those who couldn't come, but they have their blessings and they have high hopes from me. So I'd like to thank everybody for hoping so high, and yes, definitely 100% I'll be on mark whatever you have been thinking. संदेश यही है कि कभी भी, and it's never the last time.
अगर आप बड़े भी हो चुके हैं और आपको अभी कुछ लगता है कोई नया फील्ड आपको चूज़ करना है, आप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए भी सिर्फ एकेडमिक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं है। आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है और आनी भी चाहिए, लेकिन आप उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ a name. Yes, you are participating in extracurriculars, but for actually you have been conducting functions. आप ऐसे घर पे कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, घर के भी इवेंट्स होते हैं, आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करके ऑर्गेनाइज करते हो. You just not sit in a corner. So these are the skills that need to be developed, and all the universities now seek an individual who can go so far in every field. They just don't want bookworms. They want a person who after will graduate the university, he can actually work with the world, who can actually work with the community. So that was all. क्या कहेंगे कौटिल्य, आज दीदी को इतना अच्छा अचीवमेंट मिला है? जी, तो सबसे पहले तो मतलब ये पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का क्षण है। और जैसे कि आप हैं, सभी हमारे मतलब अपने परिवार के जन हैं, तो जो थोड़ा वृहद परिवार है उनका सभी का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है, बहुत समय बाद सभी इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका अपना एक अलग रस है, एक अलग मज़ा है। तो ये है कि ऐसे ही सबका आशीर्वाद आपका बना रहे, और ऐसा ही है कि आपको जो करना है आप वो कीजिए। जितने बच्चे भी अगर देख रहे होंगे, अगर उनको कोई नई चीज़ करनी है तो दे शुड ट्राई इट आउट, इतना ही कहूँगा मैं। आज आपको दीदी को जो आशीर्वाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए स्वामी जी पधारे यहाँ पे। जी, देखिए, हम सनातन संस्कृति के ही सभी मतलब पालन करने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि अपनी रूट्स को ना भूलें। और क्योंकि मन की, तन की, हर चीज़ की शांति के लिए आपको अपने से थोड़ा सा मतलब एक थोड़े से ऊपर स्तर पर जाना पड़ता है, उठना पड़ता है। और आपको आपके उत्थान के लिए कहीं ना कहीं आपका जो धर्म है, जो सत्य है, जो कि आप जो भगवान है, या जो भी आप उसे जिस भी रूप में कहिए, वो काम तो आते हैं, उनकी कृपा होती है, तो एक अलग मज़ा होता है। बस इतना ही है। आज बहुत से टैलेंटेड बच्चे आए हैं जो आपकी दीदी को आशीर्वाद देने, बधाई देने पहुँचे हैं। जी, तो ये है कि थोड़ा सा भाई परिवार थोड़ा सा, 2 बच्चियाँ वो भी हैं जो सिलेक्ट हुई हैं वो भी। जी, परिवार थोड़ा सा बड़ा है, सभी का आशीर्वाद है, सभी का प्यार है, और सभी आए, सभी परिवार के लोग आए हैं, तो ये जान के और अच्छा लग रहा है। मतलब आपको टैलेंटेड परिवार, आप खुद टैलेंटेड है तो सारा परिवार टैलेंटेड है आपका? नहीं, सभी परिवार के आशीर्वाद से हम सभी हैं, और सभी पहले वे हैं सभी, फिर हम तो खैर छोटे मोटे हैं ही। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। स्वामी जी बेटी को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हमने बेटी को उसकी सफलता के लिए हमने आशीर्वाद दिया है, और जो हमने आशीर्वाद दिया है, अहर्निशम सदैव उसकी जो है मेधा शक्ति, उसकी स्मृति, उसकी उन्नति, और ऐसी उन्नति करे कि देश में उसका जो है नाम हो, भी नहीं कर सकते। परिचय दें। मेरा नाम जाकिया है, मैं कक्षा 3री की छात्र हूँ। आज आप आए हैं नरला के अंदर, जी, किस कार्यक्रम में पहुँचे आप? आज मैं कौटिल्य की दीदी के कार्यक्रम में आई थी। उन्होंने टेस्ट दिया है फ्लाइकेशन फेस्ट, यूके जा रही हूँ, इसलिए। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है। यस। कैसे बधाई दी आपने? उनको मैंने गिफ्ट से बधाई दी। आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे अंदर कैपिटल्स का टैलेंट है। कैपिटल्स कई तरह के होते हैं, शब्दों का कैपिटल्स होता है, सिटी का कैपिटल्स होता है, और भी कई तरह के कैपिटल हैं। तो कौन सा आप कैपिटल्स हैं आपके इसमें? सारे? यस। A to Z? यस। मैं डॉक्टर अलका अलावत, मेरे हस्बैंड हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पे हिसार में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में तैनात हैं। आज आप पहुँचे हैं यहाँ पे? जी सर। आशीर्वाद दिया आपने बिटिया को? जी सर। क्या कुछ आशीर्वाद देकर आए हैं? सर, हम बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी बिटिया दीक्षा कौटिल्य की जो बहन है वो जा रही है लंदन में, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम बहुत सालों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत हमारा 3री पीढ़ी का रिश्ता है सर ये। मेरे जो हस्बैंड हैं वो दीक्षा के दादाजी से गुरु हैं उनके, तो हम तो बहुत पहले से ये नाता जुड़ा हुआ है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हम आपको भी बधाई देंगे। थैंक यू। आपकी बेटियों ने भी जो है यही अचीवमेंट प्राप्त किया है। धन्यवाद सर। कितनी खुशी हो रही है आज? सर, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के हमारी बेटियाँ तो हमसे झगड़ा कर रही हैं, बल्कि कि आपने तो हमारे लिए पार्टी नहीं दी। पर सर, हम सच बताएं कि पार्टी देना कौन नहीं चाहता, और कौन नहीं चाहता कि सबको इकट्ठा करे और प्रसाद दे।
लेकिन क्या हुआ कि हमें टाइम ही नहीं मिला सर। इनका इतना जल्दी इनका प्रोसेस होता चला गया, थोड़ा हमें भी लगा कि थोड़ा टाइम होता तो हम करते, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बिटिया है, ये भी जा रही है, हमें इसकी भी खुशी है। और हमारी मेरी दो बेटियां जा रही हैं, दोनों लंदन जा रही हैं और वो 16 साल की हैं सिर्फ, और उनको 11 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है वो उनके लिए ना। तो बेटियां लंदन जाके एक अच्छी अलग से अचीवमेंट में प्राप्त करेंगी, वो अच्छा लग रहा है कि 11 लाख बच के वो अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे को वो अच्छा लगेगा कि मेरी बेटियां और ज़्यादा ऊपर जाएं, और ज़्यादा। मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मेरे 2 बच्चे और हैं उन पे सर। आई थिंक तो मैंने सारा टाइम उन्हीं के ऊपर लगाया है। आप डॉक्टर हैं? जी सर। आपको शायद लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में, क्योंकि उम्र भी पूरी नहीं हुई अभी, नहीं 16 साल की है सर, तो उससे कम उम्र में जो है, जिस उम्र में जो है जाना चाहिए था, उससे पहली उम्र में चीज़ को प्राप्त कर चुकी हैं। तो क्या लगता है कि आजकल के बच्चों में क्या कुछ आ चुका है सर? कंपटीशन की भावना बहुत बढ़ गई है सर। और पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं सर हम भी बढ़ाएंगे, क्यों ना बढ़ाएं सर। अगर कंपटीशन में हमारा बच्चा खरा उतरता तो हमें उसको खड़ा करना चाहिए, क्यों ना करें। और हमें तो यही था कि सब जगह यही था कि नहीं जा पाएंगी, 2 साल लगेंगे इनको, अभी 2 साल आप ख़राब कर दोगे बच्चों के। लेकिन हमने कहा अगर इनके पास टैलेंट है और कुछ है इनके पास, जिसको वो चीज़, इनके पास सब कुछ है सर, सब कुछ है। स्टेज फ्रेंडली है, संस्कार है, इंग्लिश अच्छी है, और हमें कुछ भी नहीं, मैं कह रही हूँ हमारे को पता ही नहीं चला इनका एडमिशन कब हुआ। अनकंडीशनल लेटर मिला इनको, और हम बहुत पहले जब नहीं हुआ था तब हमें भी लगता था कि पता नहीं बच्चे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ, सारे हर्डल्स क्लियर होते चले गए सर, बच्चों की वजह से। मेरी वजह से इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा यहीं तक था सर। नेक्स्ट मेरे बच्चों ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया सर। बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे? अपने बच्चों के साथ मेहनत करो, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तरक्की पे रखो, हमेशा आगे बढ़ाओ, हमेशा उनको बूस्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा उनको। और जहाँ भी आप लेके उनको अच्छे संस्कार दो, सबसे बड़ी बात ये है। सब बोल रहे हैं अभी कि वो 16 साल की हैं, वो छोटी हैं, अभी नहीं भेजना चाहिए। हमें पता है हमारा बच्चा वहाँ पे जाके बहुत अच्छा करेगा और इससे भी अच्छा करेगा। हमें पता है हमारे फैमिली के, हमारे जानकारों के संस्कार कैसे हैं, हमारे घर के संस्कार कैसे हैं, हमें पता है हमारा बच्चा वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। ये हमें अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है, इसलिए हम उनको कभी कुछ नहीं कहेंगे कि आप ये ना करना, वो ना करना, क्योंकि वो अभी से ही जानते हैं कि हमें उनको क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए हमें उनको समझाने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है सर। ये इसलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सर। धन्यवाद। परिचय दे बेटा। मेरा नाम एंजल है और अभी मैं 16 वर्ष की हूँ। एक सेकेंड, इंग्लिश में बोल सकते हैं? हाँ, किसी में बोलिए। माई नेम इज एंजल, आई एम 16 years old and I am going to college in United Kingdom, University of Surrey, England. Thank you. आज ही किस कार्यक्रम में पहुँचे हैं आप? आज मैं अपनी जो मेरे साथ ही पढ़ती थी दीक्षा, उनकी सिलेक्शन हुआ यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने के लिए, उसके साथ मैं भी यूनाइटेड किंगडम ही जा रही हूँ। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट, आई कैन स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन फ्रेंच इफ़ यू वांट, वॉट एवर यू डिज़ायर, बट या so I am here to celebrate the celebration for Diksha being selected into United Kingdom to study, whereas me and my sister as well are going into University of Surrey for studying. Thank you. क्या नाम आपका? My name is Sophie Alawat and I am only 16 years old. कितनी खुशी हो रही है? It's a moment of great pride and obviously it feels good to have made our parents proud by going and by selecting into top 11 university in the UK. So it's definitely a moment of great joy. आज कैसा लगा यहाँ से? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, इवेंट काफ़ी अच्छा है, एंड स्पेशली गेटिंग टू नो दैट हमारे साथ की जा रही है। सो वी आर नॉट जस्ट हैप्पी फॉर आवरसेल्फ बट फॉर हर आल्सो। उम्र से पहले? हाँ जी। हमने अपनी 12th 15 साल में कर ली थी एंड अब हम 16 में कॉलेज करेंगे और हमारी डिग्री 19 साल में ख़त्म हो जाएगी। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो बैठ के उम्र ही ख़राब करते रहते हैं? डेफिनेटली आजकल तो फ़ोन्स एंड टैबलेट्स पेरेंट्स अपनी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने के लिए बच्चों को दे देते हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप चाहें तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली गो फॉर इट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड एंड गेट अ चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड जस्ट नॉट सिट एट योर होम। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसको वोट देंगे? मैं डेफिनेटली ऑफ कोर्स भगवान को, एंड माय पेरेंट्स हेल्प मी अ लॉट इन दिस, एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर एंड सतीश सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। वो मेरे हमेशा गाइडेंस एज अ टोच रहे हैं। पेरेंट्स इतना नहीं हेल्प कर पाते बिकॉज दे आर इन देयर जॉब,
but definitely have good teachers, have good mentors, and they will give you definitely great guidance to get you selected into the top universities in the world. Thank you. आप किसको देंगे इस एरिया? Definitely my parents, my teachers, I'm grateful to them for this. Wouldn't have been possible without their support. And not just this, but to advice if I would like to give to the young generation. See, it's hard, I know, leaving the distractions aside, but learn to manage your time, learn to divide. If you are spending 3 hours of the day on the phone, then set double the time for your studies. And then you can achieve anything in the world. And also there's a saying, there's this favorite quote of mine, that when you want something, the whole universe conspires in helping you achieve it. So definitely nothing's impossible and nothing's too far out of reach, only if you have the will to do something. क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आती है, बिल्कुल आती है. Exactly, as my sister हमारे said. देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं हिंदी भाषा में बात हाँ जी, हाँ जी. और आप? We started in हिंदी, but फिर आपने तो, बट ऐसा नहीं है. ये तो ज्ञान तो ऐसी चीज़ है जिसको जितना सीख लो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना. इंग्लिश पे हिंदी पे? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को कहीं भी जाए हिंदी नहीं छोड़ सकते हैं हम. हाँ जी, सो दोनों ही चीज़ें. थैंक यू सर. कितनी खुशी हो रही है आज? सबसे पहले तो मैं टैलेंट ऑफ इंडिया और द ड्रीम्स के आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी कर्मचारी अधिकारियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्राम की इतनी अच्छी कवरेज की, और ये बड़ी खुशी का अवसर है कि इसमें दीक्षा के साथ साथ मेरी दोनों बेटियां भी यूके जा रही हैं. और ये कोइंसिडेंस ये है कि दीक्षा ने भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और सोफ़ी ने भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है. सर, उम्र से पहले किया, कैसा लगता है अपना समय और आज का दौर कैसा लग रहा है? क्या बच्चे गूगल के पैदा हो रहे हैं? नहीं, गूगल के तो नहीं है. वक्त के साथ हर चीज़ें चेंज होती रहती हैं. चेंज के लाइफ का मतलब ही चेंज है जी. तो इसका जो है आप इनकी मामा को कितना जोर देंगे? इनके फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है, फिर उसके बाद में भगवान का है, और उसके बाद फिर पेरेंट्स का और वैल्यूएशर्स का है. इनकी मम्मी को मैं कह रहा हूँ कि बाद में है. अच्छा. भगवान के बाद में आता है और वेलविशर्स का है. सारी चीज़ें सभी का इनमें अच्छा योगदान रहा है. आज बेटा को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? बेटी आशीर्वाद में हमारे को देंगे. दीक्षा को तो आशीर्वाद मैंने वहाँ दे दिया, स्टेज से भी दे चुका हूँ. और जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनको दिया नहीं जाता. और माँ बाप का आशीर्वाद हर टाइम उनके साथ रहता है, भगवान के साथ साथ. ठीक है. सर, कहाँ से पधारे हैं और क्या कार्यक्रम में पहुँचे थे आप? मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आया हूँ, और जैसा कि हम सबको विदित है, कौटिल्य की सिस्टर दीक्षा पंडित का विदाई समारोह, उनको आशीर्वाद समारोह आज यहाँ पर रखा गया है. उनका चयन एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप पर 43-45 लाख की स्कॉलरशिप पर यूके की यूनिवर्सिटी में हुआ है, और एरो स्पेस इंजीनियरिंग के लिए वो जा रही हैं. तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. कौटिल्य पंडित और बाकी जो बच्चे आज आए हैं जी, क्या कहेंगे आज के बच्चों में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उम्र से कम है और टैलेंट में बहुत ज़्यादा आगे हैं? ये बिल्कुल, इसमें कई सारे कारण हैं. एक वैज्ञानिक कारण ये लगता है कि जिस तरह से जीन्स जो होते हैं, हमारी पीढ़ी और अब जो पीढ़ी है उसमें काफ़ी अंतर है. वो बहुत एडवांस है. उस समय, हमारे समय में 2G 3G मोबाइल चला करते थे, लेकिन अब जो बच्चे, उनका जो माइंड है वो 5G, जितनी आगे टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है उसी तरह से उनका माइंड भी ग्रोथ कर रहा है. तो बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं. आपने श्री राम जी पर जो है कविता लिखी जी, कैसा लगा? राम पर कुछ लिख देना तो अपने आप को धन्य करने जैसा है, और प्रभु की इच्छा से ही मुझे उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि कुछ शब्द में लिख सका. और वो गीत पूरे भारतवर्ष में गूंजा. श्री राम जी की प्रतिष्ठा के समय पर, अयोध्या में जब प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय वो गीत हर मोबाइल में बजा और जन जन तक पहुंचा. ये मेरा सौभाग्य है. मुझे पता है. स्कूलों के पहुंच से भी, कुंडली से भी पेरेंट्स भी आए हुए हैं. मनचंदा जी से आग्रह है, मनचंदा जी अंतरिक्ष को जान पा रहे हो, धरती को नहीं जान पा रहे. आप अंतरिक्ष के जो रहस्य, आप उसको खोल. को इनके दादाजी को मैंने देखा है स्क्रीन के ऊपर पे, जो कौटिल्य बड़ा छोटा था, 5 साल का, तभी से इनके दादाजी जो है कौटिल्य के, वो कौटिल्य को लेकर के जब स्क्रीन पे बैठते थे तो एक आभा जो
और ये संस्कारों का ही चमत्कार है जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे बच्चों को, इन दोनों बच्चों से, कौटिल्य से भी, दीक्षा बिटिया से भी शिक्षा लेनी चाहिए। और कभी कभी सर मैं जाता हूँ ना दिल्ली के अंदर में, एक कौटिल्य मन